Hello guys, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Guys, this is the second part of the chapter 3 worksheet 3. जो लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, this is my request. First see the first part. You can get the link in the description or you can check in my playlist. The chapter 3, there is a playlist, name is chapter 3. You can check over there. Question number 4, it is told compute the following division. So the number has been given, so what to do? That sign I have to change. So simply 59.049. now if I change the sign, divide to into, so then its reciprocal number I have to write, so that means 1 by 9. Okay, if we remove this point, definitely how many decimal places are there? 1, 2, 3. So that means after 1 there are 3 zeros. Okay, so this is the number now. So we'll write 59049 by 1000 into 1 by 9. So now you can cancel these two. Okay, because if you add 9, 9, 18 and 9, 27. So this can be divisible by 9. 9 6 is 54. 5 9 is 45, then 5 4 54, 6 is 54, 9 1 is 9. Now 6561 by 1000. Now either this you can write as it is, or if you write the answer in the decimal form, so you will write how many 0 over there? 1 2 3 0. So simply 6561. Now count from this side, right to left. So 1 2 3. So definitely there should be the point. So 6.565 is the answer. Now this number 0.014. now divide, agar if you convert it into sign, so it will be 1 by 12. Now if you remove this, same concept. Now how many decimal places? 1 2 3. So 3 0. It can be cancelled by 2. So 6 are 7 are. So 7 by 6 into 1000. It's better to write the answer as it is. So this. We can see that 7 is the numerator and this is the denominator. So this you have to write if you want to find answer in the decimal form. So you have to divide it. So definitely it cannot be divided. So for that point you will get 0. Still one more 0 means one more 0 over there. Still it is 700 is less than 6000. So for 1 0 another you will get one more 0 over there. So now 7000, this is 6000. So 1 is 6000. So if you minus it, you will get 1000. Okay. Now for that point you will get one more 0, no? So that means now it is 10,000. So it goes 6000. Now you can divide by 6. So sorry, this is 1. So 6 1s are 6. So 6000 minus, if you minus it, you will get 4000. For that point you will get one more 0. Now it is 40,000. Now see, after 6 how many 0 over there? It is 3 0. So here also 3 0. If you just hide the 3 0, no, what number you will get? 40. So अब सोचो कि 46 से कौन सा नंबर जाएगा? अगर 40 होता तो रिमाइंडर में 6 6 जा 36, 6 7 जा 42. So definitely 6 से जाता, तो यहाँ पे 6 लिख लो. So 6 6 जा 36. Now how many 0? 3 0. 1 2 3. If you minus it, again you will get 4000. So for that point you will get one more 0. So again 6 za 36000. So if you minus it, again you will get 4000. So 4000 is the remainder. Keep on repeating. So we can write. So now tell me here which number is repeating? 6. So you can write 0.001166 ... which is repeating? 6. So next line you can write 0.00116. Then only above the 6 you have to write the bar. This one if you want to do, so what to write? 0.02472. Now if we convert the sign, divide into sign, so 008. Now what to do? That as I have told you, if you want to remove this point,
Now how many decimal places over there? 1 2 3 4 5. So after 1 1 2 3 4 5 5 0. Okay, now if you remove this point, no, so after 1 how many decimal places? 3. So 1 2 3 0. Okay, now this and this can be cancelled. Okay, so it can be cancelled by 8 also. So and one more thing, point अभी नहीं है तो मतलब ये number we can assume this as a 8. So चलो राइट, एंड हियर ऑल्सो आई हैव रिमूव द पॉइंट. सो ये दो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2472 बाई 100 इंटू 1/8, क्योंकि ये दो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है. ओके, सो इट कैन बी डिविजिबल बाई 8. 8 1 is 8, 3 is 24, now 0 9. So 309 by 100. Now how many zero over there? 2. That means there should be a 2 place decimal. So 3.09 is the answer. 51.51. Now if you convert this into sign, so 1 by 0.17. Now same concept. If you remove this point, you will write over there how many decimal places are there? 2. So 100, and here if you remove this point, 20. Now you can see that 100 and 100 cancel. So 17 ones are 17, 17 threes are 51. Now again 0 3s are 51. So नीचे 1 है, so 303 by 1 means 303. अगर एक बार देखो ये डिवीजन अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो 17 3s are 51. Okay, now 5 goes down. Okay, now it cannot divide, it can't be divided, so 0 for 0, here 0, 17 zeros are 0, 5, now 1, 3s are 51. Okay, so 303 is the answer. Question number 5 is told the evaluate of the following. So first one given this expression, there are 3 numbers 1 2 3, so we have to calculate pair wise. So first we are going to calculate these two. Okay, so and one more thing, is their denominator places are same. See this one maximum is 2, there is also 2, but this one 1. So क्या करना है, हमें एक 0 लिखना है. अब देखो डिनोमिनेटर जो प्लेस है वो अब सेम हो गया. ओके, सो नाउ कैलकुलेट दिस टू, एंड वन मोर थिंग, यू कैन कैलकुलेट दिस बाय कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड. अगर तुम्हें जो इजी लगे वो फॉलो करो. मैं यहाँ पे दोनों मेथड ही दोनों मेथड में ही सॉल्व करवाऊंगा. ये जो वाला ये जो है इसको हम कॉलम मेथड में करेंगे और उसके बाद जो होगा वो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी करेंगे. तो चलो कॉलम मेथड मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, 25.75 7 2, सो 27.84. सो यहाँ पे लिख दो 27.84. नाउ माइनस 13.60. अब क्या करना, माइनस 1, so 14.24 is the answer. अब क्वेश्चन नंबर 3 5 रोमन 3. सो यहाँ पे अगर देखो 4 टर्म है 1 2 3 4, तो सेम उसका जो डिनोमिनेटर प्लेसेस है उसको इक्वल करो. अब देखो मैक्सिमम प्लेस क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 0.11 मतलब इंटीजर है तो 30 आएगा. ऑलरेडी 1 है मतलब और 20 आएगा, और यहाँ पे 10. बाकी देखो सबका डिनोमिनेटर जो प्लेस है वो सेम हो गया. अब इन दोनों को एक साथ करना है और इन दोनों को एक साथ करना है. ओके ना. सो एंड वन मोर थिंग, बी केयरफुल, देयर इज अ माइनस साइन, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे. जैसे कि देखो, और ये जो यहाँ पे जो हम करेंगे ना, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मेथड फॉलो करेंगे. दोनों मेथड में तुम्हें दिखाएंगे, मैंने कहा था. तो 0 0 0 आ गया, 0 0 फिर से 0, अब ये 0 7 मतलब 7 आ गया. नाउ पॉइंट, नाउ माइनस कर रहे हैं तो मतलब 1 एंड यहाँ पे 2 मतलब 1 आएगा, 1 एंड 4 दैट मीन्स 3, 31.7. आप देखो इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या होगा, 2.160, प्लस साइन को पहले लिख देंगे. ओके, माइनस 9.025. आप हम कर सकते हैं कि इन दोनों को भी कर सकते हैं, और नहीं तो इनको पहले कैलकुलेट करेंगे. तो इसको एज इट इज लिख दो 700 प्लस. अब 2 पॉइंट समथिंग एंड माइनस 9 पॉइंट समथिंग में डेफिनेटली यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है. तो आप देखो 6,
सो -6.865। अब अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ पे लिख लो 24.835। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, इसमें स्टूडेंट जो ज़्यादा बच्चे गलती करता है तो एक बात याद रखना, नेगेटिव तुम लोग क्या करोगे, इनको प्लस कर दोगे तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव, तो इसलिए पहले इसको रीअरेंज कर लो। फिर देखो, अब तुम्हें पता ही नेगेटिव नंबर जो है वो है बड़ा है तो इसका साइन नेगेटिव में आएगा, इसको माइनस कर लो। फिर इन दोनों में अगेन माइनस करना है क्योंकि साइन डिफरेंट है। एक बात याद रखना, जब क्लास 6 के बच्चे जब कभी कभी वहां पे क्लास लेने जाता हूं तो उन लोगों को ये कहता हूं कि इफ द साइन इज डिफरेंट यू हैव टू डू द डिफरेंस। साइन इज डिफरेंट मतलब देखो, अगर प्लस माइनस साइन हो गया ना सिंप्लीफिकेशन में, यहाँ पे देखो इन दोनों में जब कर रहे थे हम, क्या ये पे प्लस साइन थे, यहाँ पे माइनस, साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इफ द साइन आर सेम मीन्स आइदर प्लस प्लस हो सकता है और माइनस माइनस, तो वी हैव टू डू ऐड। साइन सेम मतलब मुझे ऐड करना है, तो ये जो एक टर्म है इसको याद रखो, इफ द साइन इज डिफरेंट यू हैव टू डू द डिफरेंस, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज द आंसर 5 का 4 नंबर। दिस यू कैन सी हियर ऑलरेडी ब्रैकेट हैज बीन गिवन, सो हमें क्या करना है, ब्रैकेट का वर्क फर्स्ट करना है अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल। तो इन दोनों का अगर तुम ऐड करोगे तो एक बात देख लो कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो इक्वल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था तो 0 लिख के इक्वल कर लो। अब इन दोनों का कैलकुलेट तुम करोगे तो बस ऐड करने तो बहुत ही इजी है, तुम हॉरिजॉन्टल मेथड फॉलो कर सकते हो। 6 आ गया, 0.5 एंड 6 11.6 माइनस, अब इसका डिफरेंस है तो एक बार कॉलम मेथड तुम फॉलो कर लो तो तुम लोगों के लिए इजी होगा। सो 12.41। अब देखो फिर से साइन इज डिफरेंट, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस। साइन इज डिफरेंट मतलब वी हैव टू डू द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, तुम्हें पता ही है। सो 1241 बिगर नंबर 11.06, अगर माइनस करोगे तो तुम्हें जो मिलेगा 5 1 कैरेट मीन्स 3 नथिंग मीन्स 1, सो 1.35। अब बताओ साइन किसका होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। इसमें ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम करता है, देखो कौन सा नंबर बिगर है, 11 पॉइंट समथिंग मतलब 11 सोचो इसको मनी मन में, और ये जो है 12 है, कौन सा नंबर बिगर है 12। सो उसका जो साइन होगा, जो देखो हमेशा घर में क्या आता है, बड़ों का चलता है, जो बड़ा है वो जो बोलेगा वो उसी का चलेगा। तो ऐसे याद रखो, ऐसे रिलेट करो कि यहाँ पे जो नंबर बड़ा है उसका मनमर्जी मतलब उसका ही चलेगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 12.41, तो इसका मतलब साइन, इसका साइन क्या है माइनस, तो उसी का चलेगा तो माइनस, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। सो -1.35 इज द आंसर। नाउ डू द लास्ट नंबर 5 नंबर। देखो 4 टर्म है, यहाँ पे हम पेयर कर बना सकते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो अगर इनको ऐड करना है तो ऐड मतलब बहुत ही ईजी हो गया। 6 5 0 एंड 5 का ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 एंड 3 का करोगे तो 9 आ जाएगा पॉइंट। अब 2 2 4 हो गया, अब 8 एंड 1 हो गया 9, सो 194.95। अब देखो यहाँ पे जो है बी केयरफुल, तुम माइनस कर मत देना इनको, जो ज्यादा बच्चे क्या होगा यहाँ पे माइनस कर देता है, तो तुम लोग क्या करोगे, देखो क्या क्या नोटिस करना है, इसका भी साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, मतलब साइन सेम हो गया, दोनों का ही माइनस। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, ऐड करना है इन दोनों नंबर को। याद रखना माइनस कब होगा, इफ साइंस आर डिफरेंट देन यू हैव टू डू द डिफरेंस, ओके। सो इसको अगर तुम ऐड करोगे तो 3 एंड जो माइनस साइन तो होगा ही क्योंकि दोनों का ही साइन माइनस है, 3 एंड 4 आ गया, अब 7 एंड 2 क्या हो गया 9 आ गया पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 1 मतलब 10 एंड 0 मतलब 10, सो 10.94 माइनस। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्योंकि इसका जो है साइन प्लस है और इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है और इसका माइनस, सो 194.95, ओके, एंड दे आर 10.94, तो यहाँ पे तो 01 पॉइंट हो गया, 184.01 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, simplify and express the result as a rational number in its lowest term. So first you have to simplify it,
then you have to convert the decimal number into rational number. If it is in the lowest form then okay, if it is not in the lowest form we have to convert it into lowest form, that means simplest form. Okay, so let's do it. देखो इन दोनों को according to Bodmas rule you have to add these two first. So 5 and 2 का अगर तुम LCM करोगे तो 10 आ जाएगा. So यहाँ पे 5, यहाँ पे 2. अब ये जो है ये डिवीजन है, तो 6.25 अगर तुम इसको इनटू करोगे तो 1/0.25. अब ये तो 7/10 आ गया प्लस. अब देखो अगर तुम ये पॉइंट रिमूव करोगे तो डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 है, तो तुम लोगों को पता ही है 1 के बाद 20 लिखना है. और अगर यहाँ पे तुम एक बात याद रखो, ये जो नंबर है ये न्यूमरेटर प्लेस में है, तो 0 मतलब 100 और 1000 जो 10 का पावर है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, जहां नंबर प्रेजेंट होगा उसका ऑपोजिट जगह में. और यहाँ पे नंबर कहाँ प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में, तो 100 और 1000 ये कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, ऊपर में. सो देखो अगर ये रिमूव हो गया तो 2 प्लस डेसिमल मतलब 100 हो गया. ओके, अब इन दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. 25 1 जा 25, 25 जा 625, तो यहाँ पे 25 लिख दो. अब 25 कैन बी रिटन एज 25/1, 10 आ गया. अब ये तो 7 होगा और ये यहाँ पे 250 होगा, क्योंकि 10 से 25 को मल्टीप्लाई करना है. तुम लोग ये पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी. सो 257/10. अब देखो नथिंग कैन बी कैंसिल, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म यू कैन से. नाउ नेक्स्ट वन. सो ब्रैकेट का वर्क फर्स्ट करना है, तो 1.44 इंटू, नाउ वी नो एक्चुअली 12 स्क्वायर इज 144. सो अगर तुम्हें 144 से 12 को डिवाइड करोगे तो तुम्हें 12 मिल जाएगा. ओके, अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको डिवाइड, ये जो डिवाइड डिवीजन है ये राफ में कर लो एक बार. ओके, माइनस. नाउ 0.225 प्लस 3.276. अब तो तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमें मल्टीप्लीकेशन पहले करना है. सो 144 एंड 12 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आएगा, ये मुझे पता है, फिर भी एक बार देख लो. 12 4 जा 48 एंड 17, सो 1728. अब डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2. सो दोनों दो मतलब राइट से लेफ्ट में आएगा 1 2, सो 17.28 माइनस. अब माइनस होगा या प्लस होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा. देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 डेसिमल नंबर है, तो साइन डिफरेंट है, मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंस. यस, सो 3.275 बिगर नंबर 76 माइनस 225 स्मॉलर नंबर 0. अब देखो माइनस करना तो ये 1 आ गया, ये 5 0 एंड दैट इज 3, सो 3.051. अब कौन सा नंबर बड़ा है, सोचो कि 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये 0 है और ये 0 के करीब नंबर है एक्चुअली, और ये जो है 3 है, तो डेफिनेटली ये बिगर नंबर है. और मैंने कहा है घर में क्या होता है, हमेशा बड़ों का चलता है, तो यहाँ पे जो बिगर नंबर है उसका ही चलेगा, तो उसका जो साइन है पॉजिटिव, तो प्लस. ओके, अब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे 3 तक और यहाँ पे 2 तक, तो इसको 3 बना लो. अब 1 0 मतलब 1 आ गया, 5 8 13, 3 आ गया, 0 2 मतलब 2 और 1 3 एंड दैट इज 20. सो 2 0 3 3 1. अगर ये पॉइंट को तुम रिमूव करना चाहोगे तो कितना प्लेस डेसिमल है, 3, सो 1 के बाद 3 0. ओके, सो दिस इज द आंसर. और इसको तुम लोएस्ट फॉर्म मतलब यही लोएस्ट फॉर्म है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म. जो 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें फिर से अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमें इन दोनों का कैलकुलेशन पहले करना है. तो अगर पॉइंट उठाएंगे तो 1 2 3 प्लेस डेसिमल, सो 30 आएगा. ओके, अब तुम लोगों को तो पता ही है 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, क्योंकि 49 से पहले अगर 0 रहेगा तो वो नंबर 49 ही होगा. तो ये आ गया 7/1000. अब इन दोनों का अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 8 एंड 20 का एलसीएम, 40 इज द एलसीएम, सो 40 लिख लो. सो 8, सो प्रोसेस क्या है, 40 से मल्टीप्लाई करना है, सो 15 आ गया. और यहाँ पे 7/20 इंटू 40, सो 14 आ गया, सो माइनस 14. 7/20
1000 प्लस, अगर इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो 1 आएगा 1/40। सो अब 1040, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 1000। ओके, अब ये सब 7 ही आ जाएगा और यहाँ पे 1/40 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, 25 जा, सो 25, सो 32/1000। अब देखो इन दोनों में कैंसिल होगा 4 से, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। फिर से देखो ये कैंसिल होगा 2 से, 4/125, सो 4/125 इज द आंसर। और एक सम बाकी है, अब 6 नंबर जो सम है। और एक बात है कि तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने हर एक सम नहीं करवाया है, जो मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है, वो सम करवा चुके हैं हम। और जो सम मैंने नहीं करवाया है, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को कि वो सम कर लो खुद से। ओके, अगर नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, तो वहाँ पे मैं आंसर बता दूंगा, और तुम्हारा डाउट हो तो वो भी बता देंगे। सो अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल ये एक पेयर बना सकते हैं ये सब। तो इन दोनों का कैलकुलेशन पहले करना है, फिर इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनटू साइन। तो अब देखना है इसमें कोई कैंसिल होगा, हाँ, तो 1 जा एंड दैट इज 2 जा। सो बस यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, तो ये लिख दो 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10 हो गया। अब क्या साइन है, प्लस, तो प्लस साइन लिखो। अब इन दोनों में कोई भी कैंसिल नहीं जाएगा, तो बस मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 25 2 जा 50, माइनस, अब ये साइन नीचे आएगा। ओके, अब इन दोनों में नहीं, तो 2 1 जा 2 एंड दैट इज 50। सो तुम्हें अब पता ही चल गया कि 50 इज द एलसीएम। तो प्रोसेस क्या था, दैट इनटू एलसीएम, सो 15। सो यहाँ पे 15 लिखना है, फिर प्लस साइन को प्लस लिखना है। अब देखो 50 इटसेल्फ, अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया ना, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो नंबर तुम्हें लिख देना, ये तुम्हें पता है, अब तक पता चल गया है। सो 15 + 1 16 माइनस 2/50 दैट इज 14/50। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 2 से कैंसिल होगा, 7 जा 25, सो 7/25 is the answer. So this is the answer. So I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends, and those who are new to my channel, फिर से वो जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, वहां पे जो ऑल ऑप्शन है वो क्लिक कर लेना, ताकि अभी जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो तुम लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।